भी थोड़ा सा reflect हो रहा है light, but I think that's okay. Hello everyone, Yeah. and we are live on Facebook. Welcome to day 3 of Breast is Best Summit. Today joining us is Dr. Anita Sharma from La Femme Fortes. And before we get started, I'm going to tell you a bit about myself. I'm Dr. Farah. I'm a family physician at Narayan Hudale, Bangalore. I'm the author of the book Newborns and New Moms. If you want to buy it, given down below. And moving on to our esteemed guest for today is Dr. Anita Sharma. Let me tell a few words about you, ma'am. She has been passionately working with women for 8 years, providing information, support, and solutions during pregnancy, labor, and for post-birth issues. After graduating from Delhi University, as a physical therapist, she worked at the Cheltenham General Hospital, UK. She has set up and managed 5 physiotherapy departments at various hospitals in South Delhi after returning to India. I think that deserves a round of applause. अगर हमारी audience हमारे लिए clap कर दे तो हम बड़े खुश हो जाएंगे for Dr. Anita. And her adult teaching and training skills, which she acquired as a professor in sports physiotherapy at the IGIPESS Delhi University, enables her to provide comfort to young couples during her Lamaze sessions. Her in-depth knowledge of biomechanics and physiology of birth helps her to design preventive programs for women in areas of जैसे pelvic related disorders होते हैं ना, पेशाब निकल जाना, incontinence, uterus नीचे आना. She helps with all of that. And Dr. Anita, to top it all, she's a certified lactation consultant by the International Board of Lactation Consultants. And over to you, Dr. Anita. Thank you so much, Farah. And happy to have all of you on board. And today, of course, I wish breastfeeding week was every week of the year. Seriously. So that, people focused more on breastfeeding, because it's not just my profession, it's my passion. I would love to see all women breastfeed. And just to inform you, this year, the international theme is not just this, but it is to save the planet. So breastfeeding to save the planet. And of course, with Absolutely. Farah, I'm going to be talking about saving the mothers, right? Yes. So, And to add to it, we have a surprise bonus of one more feather in Dr. Anita's cap. She has worked to set up the first human milk bank in Delhi. We're going to be talking about that at the end of our talk. So be sure you watch the entire thing. A lot of interesting things coming up. Thank you, Farah. So the thing is that, of course, whenever you ask a mother that, why do you want to breastfeed your baby? And like every mother, it's a universal phenomena. Once you are a mother, you think about your baby first. You actually don't even think about yourself. And you always keep talking about the benefits that the baby is going to have, with breastfeeding. But little do mums realize that there is so much of advantage when a mum feeds the baby. So let's begin with a few. The first and foremost thing is, like, when you're pregnant, you put on so much weight. Do you realize all the fat around your waist? What is it there for? Because your babies come out, the fat is still there. So it isn't for the baby to grow. That fat is not there for the baby to grow. The fat around your chest, around your arms, around your hips is all primarily for you to be able to breastfeed. So latest research actually shows that you don't really need to eat anything extra. And that pre-deposit that's been there in your pregnancy is what is going to help you lose this fat. And I think this is the foremost concern. As soon as the baby comes out and the mother's had a beautiful birth, and the process, the journey of birth is over and the journey of rearing the child has begun. So the moment she stands up and she looks at herself, there is a little kick back to her that, I'm still so fat. And they look pregnant. They look like 6 months pregnant, and people will come and tell them also. Yeah. तुम तो अभी भी pregnant लग रहे हो. And which is like so amazing for our sleep deprived brains. कि someone coming and fat shaming us. I know. And that mother, and the only thing that she needs to do is put her baby onto the breast.
I can tell you for myself, I was 48 kilos when I was breastfeeding my children, and I fed them for good 2 years. And being a working mother, the other thing that is there is it's a very strong bonding with your child. And especially if you're going to, okay, for COVID, you're not going anywhere, but otherwise, most mothers get back to work. And once you're back to work, you know that there is a sense of, there's this kind of guilt or whatever you want to call it. And also with the baby, that my mother's gone away, she's left me. So it's a beautiful emotional bonding that happens with the newborn. I'd And like to that add. leads to so many things, you know, subsequently. Like because of the change in hormones, when you deliver, you have a huge swing of hormones, right? So there's something going down, there's progesterone going down, oxytocin coming up. So this whole jingle of hormones actually makes the mother very low, right? It happens because of the hormones. It's normally called the postpartum blue, and it gets aggravated with, you know, the baby coming out and sleepless nights, etc. So that postpartum blue you're able to deal with when you start breastfeeding, and once you are successfully exclusively breastfeeding your child, you feel wonderful. You just keep looking at your baby, and that bond and that kind of that beautiful feeling that comes into the mother. And like, you know, it's like a creation. You've created something in this world, and creations, innovations are wonderful things to happen. When you ask an innovator, they'll probably tell you that this is the most wonderful thing to happen. And similarly, it's with your baby. So when you start feeding, you start looking at your baby, so you do away with a lot of postpartum depression. Right. The other thing that happens is, especially with mothers who are, you know, second or third time mothers, right? You will distinctly feel it. Some first time mothers may also feel it. The moment the baby goes onto the breast and there's let down of milk, as soon as the milk flows out of her body, you know, there's such a beautiful reflex that says, my job started, your job over, go home. And it pushes the uterus down. It's like labor-like contractions, right? And with this happens a cleansing phenomena where you find that there's a lot more bleeding when you're feeding the baby. So therefore, you're able to cleanse your uterus much faster when you're breastfeeding your baby. That's how God designed it. That's how nature designed it. I'd like to add to this. There's a story in a town in Germany called Brunswick, okay? And they would not let the baby and mother sleep together after birth. और ये क्यों करते थे वो लोग? बोलते थे कि अगर बच्चा माँ के पास रहेगा तो चूहे की तरह यूट्रस खुजाता रहेगा अंदर माँ के, ठीक है? Which meant was यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. What they said was correct. यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा, माँ की ब्लीडिंग बढ़ेगी जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करेगा, जब बच्चा माँ के सीने पे रहेगा. And but the conclusion that they took out कि उन लोगों को separate करना है, and that the contraction is bad for the mother was counterproductive, although their observation was on point. And Dr. Anita ने जो अभी mention किया है कि जो आपका weight loss हो रहा है, आपका जो fat जो जमा है आपके पेट पे, there are two things I want to talk about. एक तो एक study है जिसमें even 7 years after breastfeeding, and depending on माँ ने कितना breastfeed किया है, depending on that, मालूम they did MRI scans and they found out कि जो पेट का जो फैट है, जो डेंजरस फैट होता है जिससे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर फ्यूचर में हो सकता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग निकालता है. तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये जो फैट है मैं बिना ब्रेस्ट फीडिंग के मैं जिम जाके लूज करती हूँ, मुझे मेरा फिगर मेंटेन करना है, एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्योंकि ये जो फैट है उसके ऊपर बच्चे का नाम लिखा है, वो उसके नसीब का है, वो दाने पे उसका नाम लिखा है, यू नो, लाइक दाने दाने पे खाने वाले का नाम है. एंड दैट इज सो इम्पोर्टेंट. एंड आप पतले तो हो जाएंगे जिम जाके, नहीं ब्रेस्ट फीड करके आप हो जाएंगे, बट दैट फैट विच इज नॉट गुड फॉर योर बॉडी इज इट्स फॉर द बेबी, वो जो वहां पे डेपोजिट हुआ है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हार्ट डिजीज से बचना है, फ्यूचर में डायबिटीज से बचना है, स्पेशली अगर आप जेस्टेशनल डायबिटीज, जो प्रेगनेंसी में डायबिटीज होता है उसके पेशेंट में ब्रेस्ट फीडिंग इज सो इम्पोर्टेंट फॉर यू. तो वो स्किप ना करे. एंड एक तो चीज हम बोल रहे हैं बोनस है वेट लॉस, बट सोचना ही नहीं है पहले 3 से 6 महीने तक कि वेट लॉस के बारे में. ना वो कांटे को देखना है वेइंग मशीन के, सोचना नहीं है.
आप खाइए, आपका एपेटाइट ज्यादा रहेंगे, आप खूब पानी पीजिए, बट ब्रेस्ट फीड. एंड जो बॉन्डिंग का कहा है, एक्चुअली देयर इज दिस लॉट ऑफ वंडरफुल स्टडीज दैट हैव रेड अबाउट, इन विच आजकल आप देख रहे हैं ना कि वेस्ट में डिवोर्स का एपिडेमिक जैसे हो गया है, राइट? एंड दे आर कोरिलेटिंग कि जो एपिडेमिक आया है, जो अडल्ट्स अभी के हैं फ्रॉम द लास्ट 20 years अभी तक, ये जो अडल्ट्स अभी हुए हैं हु आर हैविंग ये कमिटमेंट फोबिया जो इतना फेमस हुआ है टीवी सीरियल्स में, वेस्टर्न टीवी सीरियल्स में, all these concepts majorly started after the children जो formula fed थे और वो बड़े हुए, that they lost that golden opportunity of bonding. ठीक है, तो Exactly. they are commitment phobic, they didn't feel that bond with the mother. Plus उनका वो amazing practice है ना कि नर्सरी में सुला दो बच्चे को माँ के बाजू में नहीं सुलाना है, उसका अलग कमरा रहता है. So these two things where the child could not develop the bond with the mother, काफी weak bonds form होते हैं, and mother has been told कि harden हो जाओ, बच्चा रोएगा, let him cry to sleep. And breastfeeding obviously takes a hit कि अगर बच्चा दूसरे रूम में सोएगा. Formula, naturally parents, माँ का ख्याल रखने के लिए father will help out with the formula. So that takes a hit. And these are the same people जो उनका template था relationship form करने का, that gets affected by not breastfeeding. Exactly. And they grow up to become commitment phobic, and they cannot fall in love, they have trust issues because जो पहला इंसान था उनकी लाइफ में जिसको ट्रस्ट करना चाहिए था, उसने उसको नर्सरी में डाल दिया, उसने उसको दूध नहीं दिया. So that has contributed to the divorce epidemic that we're seeing in the West. So, Farah, I'd like to add here, यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगी. पहले जब मैं इंग्लैंड में थी तो ये कॉन्सेप्ट आया कि नर्सरी से उठा के बच्चों को उन्होंने रूम में डाला, तो एक सुंदर सी वोकैबुलरी डेवलप हुई, रूम इन योर बेबी, right? Yes. And then we realized that it is not just room in, it is bed in your baby, co-sleep your baby. So these vocabularies came back. Thank God. Right? So, and it's so important, even अगर आपका बच्चा preterm होता है, there's only one hospital in America where they have NICU beds with mother beds, right? And there's research to show that even mother's clothes, if they are put by the NICU, the smell and the bacteria and everything helps this preterm baby, जो जल्दी आ गए हैं, समय से पहले आ गए हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है. Right? Right. So we were talking about the blood flow. So यहाँ पर एक और बात जो मैं बोलना चाहूंगी, एक वो होता है जिसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम अनीमिया, क्योंकि जब आपका बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होता है after the childbirth, so that also is reduced by breastfeeding. तो उस हिसाब से तो mother is much more healthier in terms of her health, as far as the blood is concerned in her body, तो वो उसको वो anemia नहीं होता है, and she's a stronger person. Exactly. And one more thing, anemia के अलावा है कि आपको विटामिन डी, कैल्शियम की गोलियां देंगे डिलीवरी के बाद. अगर आप ब्रेस्ट फीड करते हैं, वो जो रिसोर्स आपकी बॉडी में आ रहा है, आप जो दूध पी रहे हैं, जब हेल्दी खाने खा रहे हैं, गरम रिच लड्डू खा रहे हैं, the absorption from this is way better. तो अगर आप सोचेंगे अरे मेरा ऑलरेडी विटामिन डी कम है, मेरा ऑलरेडी कैल्शियम लेवल कम है, मेरी हड्डियां कमजोर है, मैं ब्रेस्ट फीड करूंगी तो मेरी हड्डियों से कैल्शियम जाएगा, दैट इज नॉट ट्रू. Absorption better होगा. Yes, अगर आप intake आपका कम है, you will suffer, no doubt about that. But अगर आप intake आपका बराबर है, आप अपने supplements ले रहे हैं, आपके डॉक्टर जो डाइट रेकमेंड कर रहा है, आपके घर वाले जो आपको अच्छे खाने खिला रहे हैं, the rich healthy foods, जिसके बारे में हमने कल काफी बात की थी डॉक्टर शुभांजलि के साथ, you can refer back to that. But if you're eating a well balanced diet, if you're taking care of your needs, अगर आप क्रैश डाइटिंग वगैरह के बारे में नहीं सोच रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि कैल्शियम की कमी हो जाएगी, विटामिन डी की कमी हो जाएगी, आयरन की कमी हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है. एज डॉक्टर अनीता सेड, ब्लड लॉस कम होता है वो हार्मोन की वजह से जो ब्रेस्ट फीडिंग में रिलीज होता है. और दूसरी चीज है अब्जॉर्प्शन इज मच बेटर इन द इंटेस्टाइन, और विटामिन डी का यूज सेवन अच्छे से हो रहा है. बिल्कुल. सो इफ बिकॉज ये सब जो है एक नेचुरल चीज है. तो इट्स नेचुरल, वो आप लेंगे, वो आपकी बॉडी प्रोसेस करेगी, so that the milk is healthier, so that's what happens, right? Now the other thing is that why did ये क्यों आया वापस? Because if you look at the 60s and the 70s, breastfeeding was completely out.
So most mothers, like अभी फरहा ने बताया कि वो लोग काफी ज्यादा फॉर्मूला पे डिपेंड करते थे, जिसकी वजह से आजकल इतना इश्यूज है कमिटमेंट के बारे में एंड ऑल दैट. So what we found was that it ये प्रिवेंट करता है ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर्स को, right? Right. So that is why actually it came back in a big way, even before they realized how important it is for the baby. So they started, they encouraged every woman to breastfeed so that they could prevent ovarian and breast cancers. Am I stuck? तो उस वजह से ये वापस से को ये वापस वो करना है, अपना ब्रेस्ट फीड करना है. तो दैट इज द मेन इश्यू. और फिर ऑफ कोर्स उसके साथ साथ जैसे कई माँ हमको बोलती हैं कि बड़ा टायरिंग है. तो डू यू थिंक, आई विश यहाँ पे जो मदर्स हैं काश कोई बोले कि ये इज इट टायरिंग, इट्स मोर रिलैक्सिंग and it gives you a high. Some of the mothers have come and told me that it gives me a high, it gives me a kick. You know why that kick is there? Because when you're breastfeeding, it's oxytocin that is produced in your body. एक हार्मोन है जो कि इजेक्शन में हेल्प करता है, जो आपके मिल्क फ्लो में हेल्प करता है. तो जब ऑक्सीटोसिन जब भी बॉडी में हाई होता है तो तब एंडोर्फिन्स हाई होते हैं. एंडोर्फिन्स आर योर हैप्पी हार्मोन्स. So you actually feel happy, you feel more relaxed, you can sleep better. So obviously it creates less problems. So nowadays we do have mothers with epilepsy and things like that who have been on the drug. So when they asked me, can I breastfeed my baby, I said, sure, why not? You've been taking this medication throughout your pregnancy and your doctor has reduced the dose and it's only going to help you by breastfeeding. मैम So जस्ट that's how ऑडियंस you के लिए find that एपिलेप्सी जरा mothers- डिफाइन कर दीजिए आप ऑडियंस के लिए. दे विल नॉट नो द वर्ड. व्हाट इज एपिलेप्सी? जस्ट टेल अस. Okay, जो कभी कभी फिट्स पड़ते हैं ना, किसी भी मदर को कभी कभी फिट्स पड़ते हैं और वो पहले से ही उसके लिए कुछ मेडिसिन ले रही होती हैं, ठीक है. तो वो जो मेडिसिन हैं वो क्योंकि प्रेगनेंसी में ले रही हैं तो वो फिर भी कंटिन्यू कर सकती हैं, राइट. एंड इट डेफिनेटली इंड्यूसेस स्लीप एंड इट मेक्स द मदर, it also reduces her work. If you imagine that you have to make a formula, अगर आपको एक फॉर्मूला बनाना है, रात को उठ के आपको वो पानी गर्म करना है, उसके अंदर आपको फॉर्मूला डालना है, फिर उसको ठंडा करना है, देखना है कि बेबी के लिए राइट टेम्परेचर है कि नहीं है, और फिर बेबी को फीड करना है, और फिर उस बॉटल को जाके किचन में धोना भी है. Seriously. Right? So that's a lot of work. Actually, इट इज हॉरिबल. यू नो, वो डायपर बैग इतना बड़ा आता है, उसमें एक फॉर्मूला का डब्बा, थर्मस में गर्म पानी, बॉटल, पैसिफायर, पता नहीं कितनी चीजें लेके जाना पड़ता था. दिस इज फॉर माय सन एंड आई वाज नॉट एबल टू एक्सक्लूसिवली ब्रेस्टफीड. मेरी जर्नी ऑफ राइटिंग दिस बुक स्टार्टेड फ्रॉम देयर बिकॉज आई वाज नॉट सक्सेसफुल. सेकंड टाइम में वॉलेट और मोबाइल उठा लिया, बच्चा उठा लिया, निकलो घर से, एक डायपर डाल दिया पर्स में. दैट्स इट. Exactly. इट इज नॉट टायरिंग. और अगर आपके कपड़े ऐसे डिजाइन हैं, तो मुझे याद है 30 साल पहले अगर मैं फीड करा सकती थी, गाड़ी में फीड कराया और इसी दुपट्टे से ऐसे ढक लिया अपने बच्चे को और ऐसे आई एम वॉकिंग. और जब मैं किसी के घर डिनर के लिए पहुंची तो दरवाजे पे वो हमसे पूछे कि आपका बेबी कहाँ है. मैंने बोला ब्रेस्ट फीड कर रहा है. ठीक है. रेस्टोरेंट्स में आप लोगों को सेंसिटाइज करते हैं. जब आप एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में बहुत विजिट करती थी, जैसे ही मैं वहां जाती थी, वहां का मैनेजर बोलता था, मैडम 1 मिनट आपको कॉर्नर टेबल देता हूँ, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं कुर्सी घुमा के अपना ब्रेस्ट फीड करूंगी. और भगवान ने ऐसा डिजाइन कराया आपका पूरा बॉडी कि अगर आपका बेबी यहाँ है तो कोई नहीं देख सकता कि आपकी ब्रेस्ट को नहीं देख सकता. So true. मेरी मॉम की फ्रेंड जब मेरी पहली बेटी हुई थी आके मुझसे पूछी, मैंने बोला बेबी देख लो, मैंने बोला वो तो फीड कर रही है, यहाँ देखे वहां देखे, बोले कहाँ फीड कर रही है. मैंने बोला आप मेरे इधर आके खड़े हो जाइए, आपको दिख जाएगा. एंड द प्रॉब्लम इज एक्चुअली लोग काफी बोलते हैं ये ब्रेस्ट फीडिंग कवर मेरा बच्चा नहीं लेता है, निकालो निकालो. बच्चा निकालेगा, उसका काम ही वो ऐसा ऐसा हाथ एक बार वो 3-4 महीने का हो गया वो निकालेगा. बट यू नो व्हाट, हमारे इंडियन कपड़े ऐसे हैं, टी शर्ट, अगर आप कुर्ता पहने, ढीला सा कुर्ता पहने, नॉर्मल ब्रा, यू डोंट इवन नीड द मैटरनिटी ब्रा, नॉर्मल ब्रा पहने जस्ट फॉर सपोर्ट, वेल फिटिंग,
all you have to do is just lift your top. आपको नीचे ऐसा नहीं करने की जरूरत है, आप बस टॉप को ऊपर उठाइए, बच्चे को रखिए, निप्पल, सीना, पेट सब ढक जाएगा बच्चे से, एंड बच्चे के मुंह में निप्पल कुछ दिखेगा नहीं. इनफैक्ट द रेस्टोरेंट स्टोरी रिमाइंड्स मी कि आई टोल्ड राइट, माय सेकंड बेबी आई वाज एबल टू एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड, और रेस्टोरेंट्स जाते थे, हाँ, मतलब वो मैडम तो प्रीटी मच 18 मंथ्स तक एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किए, वो तो खाना ही नहीं खाया, वो अलग बात है. बिल्कुल. बट my सास ससुर used to be there and I would get conscious. I would tell my सास क्या करूं, मुर्के पिलाओ, like my ससुर is on the table, it's like मुर्के पिलाओ, and my सास was so supportive. You know, being a Muslim family, मतलब Yeah. the only thing they knew that she's breastfeeding, they couldn't see a thing, and they were so super supportive. Nobody made anything awkward. Now my husband, ना मेरी सास, ना मेरी ससुर, everything was just cool, and even the restaurant people कोई कुछ बोलता भी नहीं था. और आप दूसरे लोगों को ये सिखा रहे हैं कि आपकी रिस्पेक्ट करें. जब एक छोटा बच्चा आपको देखता है तो आप अपनी रिस्पेक्ट बढ़ा रहे हैं. ठीक है, तो एक छोटी लड़की देखती है, वो सोचती है यही तरीका है करने का. एक छोटा लड़का जब देखता है तो वो आपको रिस्पेक्ट करता है. तो देखिए क्या फायदा है इसका, कि आपके लिए क्या फायदा है कि आप अपनी रिस्पेक्ट बढ़ा रहे हैं. राइट. सो apart from everything else, you're also you know, in actually getting the world to realize that you need to be respected. और तो इसलिए this is very helpful. और शुरू में जैसे ब्रेस्ट फीडिंग में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे इंगॉर्जमेंट आती है या यू नो इंगॉर्जमेंट वगैरह जो होती है, अगर आप नेचर के साथ इंटरफेयर नहीं करें, नेचर आपके साथ इंटरफेयर नहीं करती, तो वो बहुत कम होता है. अगर आप सही से अपने बच्चे को बार बार दूध पिला रहे हैं. हाँ, कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, उसके विषय में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, बट कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं. बट मेनली जो एनगॉर्जमेंट होती है, एनगॉर्जमेंट क्यों होती है? क्योंकि आपने टॉफी दे दी, दिमाग को पता ही नहीं चला कि कितना बनाना है. तो दिमाग तो वही समझेगा ना जो आप समझाना चाहती हैं. अब आपने टॉफी दे दी, दिमाग अपना काम कर रहा है, दूध बना रहा है, तो वो ब्रेस्ट हार्ड हो जाती है. उसको समझ नहीं आता, जैसे ही हार्ड होती है मैसेज जाता है कि भैया कम बनाओ, कम बनाओ. सो उसमें सारी गड़बड़ होती है. ठीक है. इनफैक्ट सम मॉम्स, इनफैक्ट मतलब बच्चे के रोने से 10 सेकंड पहले माँ को ऐसा लग रहा है दूध आ गया क्या, यू नो, शी विल फील दैट टिंगलिंग या द बेबी विल क्राई कि मेरे दूध का टाइम है. इतना इट्स लाइक क्लॉकवर्क, बच्चे की भूख और माँ का दूध, इट्स लाइक क्लॉकवर्क, एंड इट हैपेंस सो मेनी टाइम्स विद मी. आई वुड जस्ट से आई थिंक माय डॉटर इज गोइंग टू बी हंग्री, माय सास वुड जस्ट लाइक लुक एट मी, ये क्या बोल रही है, एंड व्वां करके शुरू होता था उसका वहां से, एंड शी वुड लाफ, बी लाइक वाओ, इट्स अ क्लॉकवर्क चल रहा है दोनों माँ बेटी का. और मोर ओवर, जब आप बच्चे के साथ इतना ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही हैं, आप उसकी लैंग्वेज समझ जाती हैं. You know, he understands you, you understand him, so you are able to identify ये रोना किस लिए है, ये रोना किस लिए है, ये रोना पेन का है, ये रोना सुसु का है, ये रोना पॉटी का है, ये रोना भूख का है. So you are making your life simpler. So it's so good for you, because you will be able to identify what your child is trying to say, because the only language they know is to cry. And in the long run, of course, the mother, because you know, it is really helpful for the mother, because you feel very good. And especially for working mothers, जब आप बाहर जाती हैं तो आप अगर नाइट फीडिंग कंटिन्यू रखती हैं, so baby is very well connected to you. और जैसे फरा अभी कह रही थी, like I don't know फरा ने कुरान में पढ़ा है या नहीं, पर उनके वहाँ अगर आप ब्रेस्ट फीड ना कराएं तो वो गुनाह है. यहाँ बच्चे का हक है, इट्स लाइक बच्चे का हक है और ब्रेस्ट फीडिंग ना कराना. और जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि लड़कियों को ज्यादा देर तक दूध पिलाने के लिए लिखा है कुरान में. ठीक है. तो क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि लड़की का जो शरीर है वो बाद में औरत बनेगी, वो भी वही करेगी जो आप कर रहे हैं. तो इसलिए, और यहाँ पे क्या होता है, लड़के का ख्याल रखा जाता है. तो मुझे ये बात कुरान की बहुत अच्छी लगी कि वो जो है उसको, लड़की को कितना स्ट्रांग बना रहे हैं फिजिकली, क्योंकि उसके भी बोन्स वगैरह यू नो ग्रो कर रहे हैं. तो दैट इज समथिंग आई रियली लाइक्ड. एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमने बोला कि नहीं, मदर का भी थोड़ा सा तो वो होना चाहिए. अगर बहुत ज्यादा मदर परेशान है तो उसको कभी कभी
अगर ओकेजनली दे रही है, तो बच्चे का डॉक्टर एकदम उठ के बोला कि हाँ तुम्हारी माँ तो बोल सकती है, मेरा बच्चा तो बोल ही नहीं सकता, तो उसके लिए कौन लड़ेगा? समझे? That's nice. So it is like that, but yes, and it forms a beautiful bond and a healthy family. It forms a beautiful, healthy family, and I have some beautiful pictures actually, where this father is sleeping after the mother has breastfed. So आप क्या कर रहे हैं? अपने शौहर, अपने husband, जी. उनको भी ये एहसास दिला रहे हैं कि I am also working hard. So he holds the baby, he burps the baby, and he puts the baby on the breast after feeding, so that the baby can get the heart rhythms and the breathing patterns. So you are involving your husband, right? Who feels very left out after the birth of a child. So अगर आप ये सब कर रहे हैं, तो it's like a complete family. It's like you're teaching your child. That's your child's first lesson. And तुम उसको अच्छी बात सिखा रही हो कि this is a complete world, right? So that's what you do. इतनी खूबसूरत बात बता दी आपने. And now we are moving on to the last leg of our chat. We are going to compare formula with breast milk little bit. कुछ तुलना है ही नहीं उनकी, but still we are talking about it. तो breast is best आपने कहाँ पढ़ा है फॉर्मूला के डब्बे पे? तो हर फॉर्मूला का डब्बा बोलेगा कि मदर्स मिल्क इज बेस्ट फॉर योर बेबी, एंड माय सन वाज फॉर्मूला फेड. अगर फॉर्मूला नहीं होता तो मैं तो पागल हो गई होती और मेरा बच्चा भूखा होता अभी तक. It's not like it's बैन कर देना चाहिए, बट द प्रॉब्लम विद इट इज इसकी इतनी हैवी मार्केटिंग हुई है एट द बिगिनिंग ऑफ द 21st सेंचुरी. एंड फर्स्टली तो 19th सेंचुरी से बनना शुरू हो गया था फॉर्मूला, और काफी इट वाज नॉट अ ग्रेट ऑल्टरनेटिव. और तब इतना एजुकेशन नहीं था अबाउट हाइजीन एंड स्टेरिलाइजिंग द डब्बा, स्टेरिलाइजिंग द बॉटल. तो उसमें बच्चों की ज्यादा डेथ्स होती थी, तो इट केम डाउन. जब बाद में जब women आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 and 2, जब women started entering the workforce क्योंकि आदमी कम थे, रिसेशन आ गया था, उसके बाद से क्या हुआ था फॉर्मूला के बाद, द women were not, they didn't ask for their rights, maternity rights. उनको तो बस वर्कफोर्स में घुसना था कैसे भी करके, and they could not be seen as a liability. तो तब फॉर्मूला की मार्केटिंग बहुत जबरदस्त हुई थी, ऑल्दो इट स्टार्टेड इन द यूएस, एंड ऑल्दो देयर वर लॉज कि फॉर्मूला आप डायरेक्टली कस्टमर को नहीं बेच सकते हैं, बट दे वेरी स्मार्ट मार्केटर्स, उनको तो $1 billion कंपनी बनानी थी. सो दे कॉन्टैक्टेड फिजिशियंस एंड दे एजुकेटेड द डॉक्टर्स कि आप रेकमेंड करो बच्चे को फॉर्मूला. और सडनली जो औरतें नॉर्मल मतलब सेंचुरी से अपने बच्चे को दूध पिलाती थी बड़े आराम से, बिना सोचे, बिना कुछ ऑल्टरनेट के, सडनली किसी को भी दूध नहीं आ रहा है, सबको दूध की कमी हो रही है. एंड यू नो वेयर दैट प्रॉब्लम स्टार्टेड, वो हमारा जो ग्रोथ चार्ट होता है ना पीडियाट्रिक्स का, जिसमें बच्चे का वेट और लेंथ मार्क करते हैं, तो वो लोग ने कंपेयर किया फॉर्मूला का ब्रेस्ट फेड बेबी से, एंड दे मेड ग्रोथ चार्ट ऑफ फॉर्मूला फेड बेबीज. एंड इफ यू सी चाइल्डहुड ओबेसिटी, जो बच्चे में ओबेसिटी चाइल्डहुड से स्टार्ट होती है, उसके the seeds of that is sown from the first formula itself. तो जो the babies were heavier, ऐसा नहीं कि उनकी ग्रोथ अच्छी थी, they were obese right from their babyhood. और ये बने हैं हमारे आज के डायबिटिक्स, expanded waistline वाले लोग, and the heart disease people. So the thing over here is the marketing was so smart कि फॉर्मूला उपयोगे, एंड डॉक्टर्स वर told, एंड डॉक्टर्स की भी क्या गलती, they got the data from them, अरे वेट गेन तो बेटर है, and those chubby babies. And slowly with the 80s and 90s globalization, liberalization, वो आया हमारे पास, and formula का peak popularity started in the 80s and 90s in India and among the Indian population. तो हमारी my age group, like the 20s and 30s, हमारी माओ के सामने फॉर्मूला ऐसे रखा गया था कि दिस इज व्हाट योर बेबी नीड्स, ये दूध गाढ़ा है, माँ का दूध पतला है, एंड ओवर हियर वी वांट टू शो दैट दिखावे पर मत जाओ, ये लगाओ, ऐसा है. सो ओवर हियर आई वांट टू ब्रिंग योर अमेजिंग वर्क इन दिल्लीज मिल्क बैंक अमारा, क्योंकि लिटिल बिट मोर हिस्ट्री ओवर हियर. पहले जो था, मतलब इन द 15th सेंचुरी 14th सेंचुरी, अगर माँ को कुछ माँ का देहांत हो गया, या फिर माँ बहुत बीमार है, या माँ
भाग गई, कुछ भी, whatever reason, there would be a vet nurse जो दूध पिलाएगी. And from there we have this concept कि breast is best, second best is not formula, second best is milk bank से milk, a vet nurse, कोई और औरत आप बच्चे को दूध पिलाए. So please tell us about your work at Amara and ये कैसे आपने शुरू किया and what have you put in? Sure. उससे पहले मैं एक बात बोलूंगी, जब तुम फॉर्मूला के बारे में और ओबेसिटी के बारे में बात कर रही थे, तो आपकी जो मेड जब आती है ना और वो आपका मोटा बच्चा देखती है तो वो भी जाके अनफॉर्चुनेटली एक डब्बा खरीद लाती है. इट्स सो सैड. It is. So that is what, and she makes her children obese. आप कितनी बार सोचते हैं कि ये जो गरीब आदमी है ये इतना फिट है, ये इतना पतला है, ये कभी मोटे क्यों नहीं होते? तो इसलिए मोटे नहीं होते. ठीक है. और as far as हमारा is concerned, मैं बताना चाहूंगी कि फर्स्ट मिल्क बैंक जो था वो 1913 में बना था, much before the blood bank. So because of the World War and the need for blood and a lot of issues with the with the infections and things like that, they took a back seat. But 13 to 1913 में बना था, and then again they came back after the Second World War. और जो हम बैंक चलाते हैं, that's the first private milk bank. We are not selling milk, but it's housed in, it's like a non-profit organization जो हम चलाते हैं. इसकी अच्छी बातें मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग के यहाँ किसी भी माँ को दूध न देने आना है न लेने आना है. ठीक है. सो हमारे पास रनर है जो आपको जाके बॉटल्स देता है, ब्रेस्ट पंप देता है, जिसको आप और फ्रेश बॉटल्स रिप्लेस करते हैं जब वो भर जाती है. एक साथ में पैम्फलेट होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको ये कैसे करना है. उसके बाद जो है, जब मिल्क बैंक में आता है, वी पैस्चराइज इट, और पैस्चराइजेशन के बाद इट इज रेडी टू गो. वेयर डज इट गो? नाउ दिस इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट. कोई भी माँ मेरे पास आके ये नहीं कह सकती कि मुझे दूध चाहिए. ये दूध जो है, आप खुद समझें कि ये जो है बहुत ही प्रेशियस कमोडिटी है. हमारे पास काश इतना हो कि हम और एक्सपेरिमेंट भी कर सके इसके ऊपर, बट अभी तो इतना ही होता है कि हम एनसीआर में नीकू बेबीज को सप्लाई कर सके. तो ये उसको दिया जाता है जो बच्चे 1500 ग्राम से कम होते हैं और 32 वीक्स से पहले आते हैं. और उस केस में भी उसी मदर को इनकरेज करा जाता है कि वो अपना दूध एक्सप्रेस करे ताकि वो जल्दी से जल्दी अपने दूध से रिप्लेस करे, क्योंकि उसका बच्चा उसके अंदर से आया है. और अगर वो अपना दूध देगी तो उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जेनेटिक रिक्वायरमेंट, उसका जो एंटीबॉडी रिक्वायरमेंट है, वो सब वो माँ दे सकती है. तो ये नहीं कि इंडेफिनेटली हम उस माँ को इवन नीकू में दूध देते रहेंगे. तो नीकू के जो न्यूनेटोलॉजिस्ट होते हैं उनको एक रेक्विजिशन भेजना होता है. वो रेक्विजिशन पे हम डिस्पैच करते हैं, और डिस्पैच करने पर हम ये भी देखते हैं कि उनकी वहाँ ये फैसिलिटी है कि वो ढंग से स्टोर कर सके और बच्चे को फीड कर सके. हमको जिन्हीं बच्चों को वो देते हैं उनकी फुल डिटेल्स भी चाहिए होती हैं. ठीक है. so that we can keep a track कि कौन सी माँ का दूध किधर गया और बच्चे की हेल्थ कैसी थी. और फरा फॉर्मूला के बारे में बात कर रही थी. सो डब्बा कंपनी, मैं उसको डब्बा कंपनी बोलती हूँ. ठीक है. फॉर्मूला, राइट. तो वो सब ये कहते हैं कि हमारा दूध बिल्कुल माँ के जैसा है. ठीक है. तो दो चीजें वो उसमें नहीं डाल सकते. क्या नहीं डाल सकते? जो आपकी बॉडी पैदा करती है. एक होता है लाइपेज, जो एंजाइम फैट को डाइजेस्ट करता है. आपके दूध में फैट ज्यादा होता है कंपेयर टू काउस मिल्क. उसमें प्रोटीन ज्यादा होता है क्योंकि उसका गट बहुत लंबा होता है. ठीक है. और दूसरी चीज है एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज का ये है कि हमने स्वीडन में देखा, एक माँ माउंटेन्स में अपने बच्चे के आंख और नाक में ना दूध स्क्वर्ट कर रही. तो मैंने उससे पूछा ये क्या करिए? बोलो नहीं, उसके नाक में थोड़ी इन्फेक्शन है, मैं स्क्वर्ट करके वो क्लियर कर रही. जब मैंने IBCLC करा तो आई रियलाइज कि देयर आर माइक्रो प्रोटीन्स फॉर एवरीथिंग. यहाँ तक कि जो माएँ पहली बार, जैसे फरा कह रही थी, दूध नहीं पिला पाती,
दूसरी बार जब वो 3 महीने प्रेग्नेंट होती हैं, वो मेरे पास आके कहते हैं इस बार जो कहोगे मैं मानूंगी, बिकॉज मेरे बच्चे बार बार बीमार पड़ रहा है So और true. उस बीमारी का भी माँ पे असर है। Yeah. अगर आपका Guilt. बच्चा बीमार पड़ रहा है, you are also not healthy, you are stressed. Yeah. And it is affecting your work, right? So if your baby is falling ill, so financially also, if you have to give up your job or something like that, it's affecting. And you have certain birthrights. You have, if you're working also, they have to provide you by a 3x3 space to express your milk. They have to provide you with a fridge to be able to store your milk and 2 pumping breaks. This is your birthright. एक बहुत सुंदर वीडियो है जहाँ पे माँ कैफेटेरिया में पूप कर रही है, ठीक है, तो वो सब लोग ई या आई कर रहे हैं, तो वो कहती है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं रेस्ट रूम में जाके ये काम करूं, तो ये बिल्कुल वही काम है जो आप मुझे कह रहे हैं वहां करने के लिए। सो आई थिंक बहुत जरूरी है कि हर माँ को ये एहसास होना चाहिए कि उसका बर्थ राइट क्या है। ये आपका भी बर्थ राइट है और आपके बच्चे का भी बर्थ राइट है। और इकोनॉमिकली इट्स मच मोर वायबल। देयर हैव बीन लॉट ऑफ स्टडीज बाय द गवर्नमेंट टू शो that it is much more viable even on your financial pockets, because बच्चा बीमार नहीं पड़ता, हॉस्पिटल्स की फीस कम है। In fact, ma'am, मैंने क्या किया है, this is my book, ma'am. I'll be sending you a copy. I would really be honored. Thank you so much. I'd be really honored if you would be able to read it. And यहाँ पर हम सब इंडियन हाउसवाइफ्स हैं, मतलब हम माँ हैं, हम दुनिया कॉन्कर कर लेंगे, बट हमारा ये तो इंडियन हाउसवाइफ का ही है, मतलब बनिए का दिमाग तो जबरदस्त है। अक्रॉस द वर्ल्ड है, हर माँ को ये लगता है, तुम्हारी भी मेरी भी, कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया नहीं, उसको दूध कम मिल रहा है। And on page 164 of my book, आपने जो बात कही अभी, I have written literally another reason to embrace the breast would be the cost factor nobody told you about. मैंने पूरा गणित करके दिखाया है कि पहले साल में ब्रेस्ट फीडिंग का ये कॉस्ट इंडिया में कितना होता है, और मैंने वो तक इंक्लूड किया है कि पीडियाट्रिशियन का विजिट बढ़ेगा आपका, उसका भी फीस डाला है मैंने। सो प्लीज डू रीड द ब्रेस्ट फीडिंग चैप्टर इन दिस, बहुत आपको मजा भी आएगा। इट्स गिवन वेरी in a fun way. And I think I lost you, Dr. Anita. I can't see or have you lost me? Baby Chakra, can you help us out? Yeah, I think now you're fine. Yes. You had gone off for a while, now you're fine. Yeah. So in this book, in a very fun way, I have told about the cost of breastfeeding. Exactly. If you're a new mom or an expecting mom, or आप किसी को जानते हैं, आप कुछ उनको कुछ gift करना चाहते हैं, please you can give them this book. It's available on Amazon. The link is given down below. Dr. Anita, you can expect your copy very soon. And thank you so much, Farah. And it was so lovely having you on board. And this brings us to the and we are right on time. This brings us to the conclusion of our topic. You can join us tomorrow. We have a panel of 3 experts from the workforce, leaders of the workforce. We'll be sharing the creatives very soon. And the topic is maternity returnees and India Incorporated best practices towards fostering inclusion. बहुत amazing topic है, बहुत superb lineup है. Dr. Anita, I want to personally thank you for having that milk bank. It is such an amazing initiative. Thank you so much. Anything you want to add before we say bye to our amazing audience also? The only thing I will add that, you know, God designed everything perfectly. Just believe in yourself, believe in God, believe in nature. Don't interfere with nature. This pandemic has shown us that don't interfere with me, right? So I think breastfeeding is a good way to begin with. Yes, and the lineup for the rest of the week is also superb. You can check out the video on the Baby Chakra page. You will be seeing me for the next 4 more days. Ma'am, it was so lovely talking to you. बहुत मजा आया. Thank you so much. Same here. Thank you so much for having me on board, Baby Chakra. Thank you, Farah, and it was lovely talking to you. Thank you. Thank you, everyone. See you tomorrow at 5 p.m. Bye. Bye. See you. Bye.